Okay. So yesterday we talked about the closest approach and we talked about the radius, right? We also talked about the energy. जिसे हमने किया. Now let's talk about Bohr's model of hydrogen atom. तो यहाँ पे तीन postulate हैं बोर के. अब वो हम नोट करेंगे. Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy, contrary to the predictions of electromagnetic theory. According to this postulate, each atom has certain definite stable states in which it can exist, and each possible state has definite total energy. These are called stationary states of the atom. इसका मतलब ये हुआ कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है that electron can keep revolving in a certain orbit. They are only fixed orbits. उनके बीच में वो कोई ऑर्बिट नहीं ले सकता. तो जैसे पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, तो या तो पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, उनके बीच में कहीं पे होगा, so it will lose energy and come back to the orbit which is lower than that, or gain energy and go to a orbit which is higher energy than that. But वो जब उस ऑर्बिट में घूमता रहता है तो it does not lose energy. इसका मतलब it can continuously for very long keep rotating, revolving in that particular orbit. That's the first postulate. ठीक है. Bohr's second postulate states that the electron revolves around nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi, where h is a Planck's constant. Thus, the angular momentum L of the orbiting electron is quantized. तो जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. So L is equals to n, which is any integer, n into h upon 2 pi for that particular orbit, right? अभी किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस अगर r है और v वेलोसिटी से घूम रहा है तो mvr उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, तो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. तो यहाँ से तुमको रेडियस मिल जाएगा कि कौन कौन से पॉसिबल रेडियस है उसको करने के, राइट? दो पॉस्टुलेट नोट कर लो, उसके बाद तीसरे पे जाएंगे. तो पहला पॉस्टुलेट ये हो गया कि वो कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम सकता है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. So while it's revolving in that orbit, it'll be stable. उसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट. दूसरा पॉस्टुलेट है कि जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा वहां उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. डन. जल्दी जल्दी लिख लो.
डन। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया, चलो आगे बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट कुड बी 1 2 3। ओके। Bohr's third postulate states that an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does so, photon is emitted having energy equal to energy difference between the initial and final states. ठीक है? तो अगर हायर स्टेट पे है, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम में ज्यादा है, वो हायर स्टेट पे होगा। उससे वो लोअर स्टेट पे आता है, जहां पे भी आता है एक जंप होता है, उसके लिए एक फोटोन निकलता है, तो उस एक फोटोन में पूरी एनर्जी होगी एच न्यू। So h nu will be E initial minus E final. Done? All right. हो गया तीनों postulate? Done? Minutes, sir. Done? Okay, संस्कृति को कर तीनों postulates बोल के बताओ क्या है तीनों postulates? First postulate said that first postulate said that electron जो है only travels in orbits, and so if it loses energy it will go on lower level of orbit, and अगर energy gain होती है तो higher level of orbit पे जाता है। ये postulate वो नहीं कहता, postulate ये कहता है कि specific orbits हैं, उनके बीच में वो नहीं रह सकते, तो there are specific stable orbits। ये पहला postulate। दूसरा? Electron can travel in those orbits only. हाँ, Electron can travel in those orbits वो only. तो पहला postulate हुआ। दूसरा postulate क्या है? उसमें angular momentum is a multiple of Planck's constant h by 2 pi. L is equal to nh upon 2 pi. हाँ, सो जिस भी ऑर्बिट में वो होगा इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, which means mvr equals to n h upon 2 pi। उसमें n क्या है? What is n?
अरे नोट किया होगा, देखो ना ऊपर क्यों देखती हो भाई, नीचे तुमने नोट किया उसको H देखो। was Planck's constant. H is Planck's constant. What is N? H is Planck's constant. H is Planck's constant. What is N? Number of electrons. एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? अरे लिखा हुआ है N, तुम नोट क्यों नहीं करते हो फिर? यहाँ लिखा हुआ है ना, N is also called principal quantum number. That. थर्ड पॉस्टुलेट क्या है? जल्दी बताओ। Electron might shift to a lower orbit of lower energy, and it emits a photon while doing that, uh, which is frequency is equals to energy difference, that is initial energy minus final फ्रीक्वेंसी energy. नहीं भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल। तो जितना एनर्जी एमिट करेगा उस फोटोन का एनर्जी उतना होगा। फोटोन का एनर्जी हम बोलते हैं एच न्यू से, एच इंटू न्यू। ओके सिया, तीनों पॉस्टुलेट फटाफट बोल दो जल्दी। So the first postulate states that electrons orbit electrons revolve around the nucleus in stable orbits, and while doing so, they do not radiate energy, which is against the theory of electromagnetic radiation. The second one is that electrons revolve in only those orbits in which the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. And the third one is that electrons can emit energy while traveling to a lower state, to a to an orbit with a lower energy. So in that case, the energy of the photon is equal to the initial energy minus the final energy. Yeah, energy of the photon is h nu. Okay. Yeah. From that you can figure out the frequency of the photon that is emitted. All right. Bohr's theory. Bohr's model is valid for all one electron atoms or ions which consist of a tiny positively charged nucleus. तो ये ठीक है, ये एक एटम है जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्रोटॉन उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, तो इट कुड बी एन आयन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो है Ze का, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर Z होगा। उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक छोड़ दो, तो ये हो गया बोर्स मॉडल के लिए। इलेक्ट्रॉन स्टेबल ब्ला ब्ला ब्ला। द वन इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस कैन बी कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यस। फॉर एग्जांपल सिंगली आयनाइज हीलियम, तो हीलियम में दो होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना। डबली आयनाइज लिथियम, लिथियम में तीन होते हैं, उसमें से दो निकाल दिया। Let EMV be respectively the charge mass blah 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 of electron and R be the radius of the orbit blah blah blah। तो mv square by r is equals to the electrostatic force। mv square by r कौन सा फोर्स है भाई? संस्कृति कोपकर, mv square by r क्या फोर्स है? अरे अनम्यूट तो करो। अरे कौन सा फोर्स है mv square by r? पिछली कल भी हमने यही पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू mv square by r, which is actually the force of attraction between them। It will be 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon naught charge 1 into charge 2 upon r square। ठीक है, खत्म। अब हमको ये भी पता है कि mvr equals to nh upon 2 pi, तो ये करने से हमको r की वैल्यू ये मिलेगी, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम डायरेक्ट, खुद से ही कर लो इनफैक्ट।
बेटर है खुद से करोगे तो। हाँ, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, आर इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज गोइंग टू बी proportional to 1 square. Radius of second orbit is going to be 2 square, which is 4 times. Radius of third orbit is going to be 9 times. तो radius इस तरह बढ़ते जाएगा for first, second, third, right? 1 4 9 16। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो that the equation of radii of permitted orbits is Rn is proportional to n square. तो nth ऑर्बिट जो होगा वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। डन। ओके, Bohr radius, the radius of the first orbit of H atom will be blah। तो यहाँ पे ये जो है इसको 1 लिख देंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर, राइट। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट एटम इज गोइंग टू बी ब्ला। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस एंड इट्स वैल्यू इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये लिख लो। अब यहाँ से हम 0.53 एंगस्ट्रॉम पता चल गया, तो अब हमको पता चल जाएगा रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम।
Done. So n square into 0.53 angstrom is the radius that you'll find for a which atom? Sanskriti ko upkar, what atom? Is this for any atom? Sir, hydrogen atom. Hydrogen like atom. Hydrogen like atom. मतलब यहाँ पे Z को 1 लिया हुआ ना, इसीलिए तो हाइड्रोजन एटम करेक्ट. ठीक है, अभी के लिए इसको तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया. ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स. वेलोसिटी हो गया ये भी उसी वहीं से आ जाएगा जो अपने पास फॉर्मूला था. तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ओके, तो ये लिख लो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड v1 इज इक्वल टू c अपॉन 137. तो v1 पता चल गया तो vn भी पता चल जाएगा. तो vn विल बी c अपॉन n इंटू 137 हो गया. Done. Frequency of electron in a stationary orbit. Okay. तो velocity equals to r omega होता है. Omega is what? Omega is the angular velocity और ये अपना linear velocity. V equals to r omega. Omega equals to 2 pi f frequency, 2 pi nu, 2 pi f. Right. तो यहाँ से आ गया nu is equals to velocity upon 2 pi r. ठीक है. बस अब वेलोसिटी की वैल्यू पता है तुम्हें, 2 पाई आर ऐसा डाला तो ये आ जाएगा. तो न्यू इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हालांकि इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए अपने पास, चलो नहीं दी हुई है तो फिर इसको ही लिख लो. ये सब तुम खुद से भी निकाल सकते हो, बहुत ही डायरेक्ट है. हो गया. ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स. कूल. तो mv स्क्वायर की वैल्यू थी अपने पास हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया. ये लिख लो फाइनली, energy at nth level is going to be minus 13.6 upon n square electron volt. Negative energy shows that it is bound to the nucleus and it's not free to leave it. Correct. Done. So for a hydrogen atom for nth level, the energy is going to be minus 13.6 upon n square electron volt. Okay. Energy levels. Energy of an atom is the least when its electron is revolving in an orbit closest to the nucleus. That is for which n equals to 1.
For equal to 3, the absolute value of the energy is smaller, so the energy is progressively larger in outer orbits. यहाँ पे देखो, जितना n बढ़ते जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी, बट कम होते जा रही है नेगेटिव में, इसका मतलब बढ़ते जा रही है ना, क्योंकि नेगेटिव में कम होते जा रही है, तो वो और नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, इसलिए वो नीचे एनर्जी में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी पे आता है, उसके बाद जीरो एनर्जी आ गई, तो वो आयनाइज हो जाएगा, इसका मतलब वो किसी से बाउंड नहीं है, फ्री हो गया, ऑलमोस्ट निकल जाएगा, उसके नीचे ये सारा ना। तो ऐसे एनर्जी स्टेट्स है, -13.6 पहले पे हुआ, दूसरे पे क्या होगा, -13.6 बाय 4, फिर होगा -13.6/9, फिर होगा -13.6/16, है ना, ऐसे होते जाएगा। तो अब ये किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे जंप करता है, तो उसने का एनर्जी डिफरेंस तुमको मिलेगा, एंड दैट वुड बी दी एनर्जी ऑफ दी व्हाट एमिटेड, संस्कृति को ऊपर। energy of the electron, आर्या, Energy emitted. of what emitted, what is emitted with that energy, Photon. फोटोन। संस्कृति को ऊपर ध्यान नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेगा तो क्या चीज एमिट होगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ी एमिट होएगा, photon emit फिर होगा। व्हाई यू नॉट अटेंटिव, एनीवे कूल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी E2 minus E1 will give us this, right, 13.6। और अगर 13.6 के साथ हमको दूसरा वो चाहिए होगा, दूसरा एटम चाहिए होगा, तो Z² मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, है ना, क्योंकि बाकी की वैल्यू तुमको पता है कि 13.6 है, तो Z² इंटू 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², है ना, दैट विल बी द एनर्जी। लिख लो उसको, E2 minus E1 equals to Z², N2, N1 से N2 जा रहा है, तो N2 माइनस N1 होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन अपने उसमें लगा हुआ, -13.6/n², इसलिए उधर उल्टा हो गया, बट नाउ इट विल बी Z² इंटू 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E2 minus E1 का, that will be the energy of h nu, that will be equal to h nu, so nu equals to E2 minus E1 by h, तो ये आएगा। ठीक है, डन। चलो भाई, अभी उसका क्या वेवलेंथ होगा, उस जो फोटोन निकल रहा है उसका, तो V equals to n lambda, V equals to n lambda, C equals to nu lambda, 1/lambda equals to blah, 1/lambda is also wave number by the way। Anyway, ये सब हो गया, ठीक है। In the last equation, the quantity blah is a constant known as Rydberg constant, and its value is 1.097 into 10 to the power 7. 1/lambda equals to Z² into Rydberg constant 1/n1² minus 1/n2²। लिख लो, पूरा ही लिख लो अगर चाहिए तो, यहां से लिख लो पूरा, बार बार लिखोगे तो थोड़ा याद रहेगा।
Done. For Rydberg constant, Z square is not counted, right? This is only for hydrogen, right? Right. Done. Chalo. Radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is blah. Calculate its radius in n equals to 2 orbit. चलो कैसे करेंगे इसको? n square h square epsilon naught by pi. नहीं 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 नहीं, तुमको पता तो है 0.53 एंगस्ट्रॉम बाय n स्क्वायर था ना? Oh, then 0.53 into 4. अपॉन n स्क्वायर क्या था? No, but we did for Bohr radius. हाँ, We did. या पॉइंट या इनटू या करेक्ट इनटू n स्क्वायर, राइट. ठीक है, डन. यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, 0.53 एंगस्ट्रॉम ही दिया हुआ है. अगर ये कहता कि हाइड्रोजन का नहीं किसी और एटम का, तो सेंस होता बिकॉज 0.53 हमको पता है हाइड्रोजन का, राइट. सो करेक्ट, डन है ना. तो उसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आ गया. फिर दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ब्ला. फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेज. बताओ कैसे? एनर्जी दिया हुआ है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ब्ला. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is equal to the negative of the total energy. हेलो, How? ये हमने किया था ना कैलकुलेट. What? ये Oh. ठीक है. तो टोटल एनर्जी देखो कितनी यहाँ पे. टोटल एनर्जी है माइनस जेड स्क्वायर बाय ब्ला, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी है जेड स्क्वायर बाय ब्ला. तो ये भी लिख लो वहां पे कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस हो गया और टोटल एनर्जी, राइट. हो गया खत्म. उसके लिए नहीं तो तुम लंबा फॉर्मूला लगाते, है ना. ऑल राइट, डन. The class is going to end, so you come back, then we'll start the next topic. Okay, bye.